इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है। और जिस शख्सियत को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हैं। और ये वो राजा थे, वो शासक थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एकता, तरक्की और इक्वलिटी को जो है वो लगातार बनाए रखा। और इनके शासनकाल में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई जो है तरक्याती काम हुए जिसे आज भी याद किया जाता है। हालांकि अब जो है वो पुराना समय नहीं है, मगर लगातार जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इनका जिक्र इसलिए भी होता है क्योंकि इन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना। आज जो मौजूदा हालात कश्मीर में बने हैं, जिस तरीके से कश्मीर में लगातार जो है वो सिलेक्टिव किलिंग होना शुरू हुई मिनॉरिटीज़ की, वो एक चिंता का विषय। और इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं से आपसे रूबरू कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर की आज हालात हैं और क्या लगता है क्या होना चाहिए। लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंक का नंगा नाच पाकिस्तान नाच रहा है उसके खिलाफ, तो आइए बात करते हैं। सो लेट्स मूव हियर एंड विल स्पीक टू द फर्स्ट वॉइस, यंग वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हियर। Let's speak to a female over here that what you think that what is required, the way basically things are taking place in Jammu and Kashmir, like recent target killing started, how painful it is and what need to be done. See, it is very much painful to see this all over again. We know about the 90s exodus. We don't want that. And people of Kashmir who are giving space to the terrorists, they need to understand that terrorism can hit anyone, anywhere. It is not about the religion, but yeah, it is right that people are being targeted. The last Kashmiri Pandits, the last Hindus who are there in the Kashmir, they are being killed. But the people who are giving space to terrorists at their home, they need to understand that terrorism will hit anywhere, right? Today they are with them, tomorrow they will not be with them. So they need to understand the fact that terrorism will hit anywhere. So they need to stand up against it. They need to come in solidarity with the people who are being killed, who are being targeted because of their religion. They need to come in solidarity. We today here, the students of Jammu and Kashmir, are here today to show our solidarity with the people who have been killed, with their families. Do you think that many people from Kashmir, they also understood that terrorism will not spare anybody? They understood, but still there are some of the anti-national forces which are working in the Kashmir. So people who are not understanding, it's high time. It's high time. We don't want the 1990s situation again. Also, through this platform, I would like to say to the government that they need to take strict action, because we don't want to see the situation, that spiteful situation again. We know that in the last few days, many in thousands of numbers Kashmiri Pandits who were living there have come back to Jammu. So it is like history is repeating itself. We don't want that. So situation should not be repeated and that need to be controlled. And we have with us one Kashmiri Pandit boy whose family might have faced the tough time in 90s. क्या लगता है जिस तरीके से कश्मीर में एक बार फिर हालात बने हैं, क्या हुआ है? आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो दोस्त होंगे वहाँ, वो वापस आ रहे हैं? सर देखिए, हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उनको वापस आने में मजबूर कर दिया जाए। कुछ हैं जो बेचारे पैनिक हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो स्टैंड ले रहे हैं और रुक रहे हैं। बट बात ऐसी है कि ना, अगर खतरा दुश्मन से हो तो इंसान समझ लेता है, बट आपके अपने ही दोस्त जो हैं वही अगर आपके लिए खतरा बन जाए तो मुश्किल हो जाती है। कैसे? सर देखिए, जैसे जो लोग शेल्टर दे रहे हैं कश्मीर को, कश्मीर जो टेररिस्ट जो हैं कश्मीर में आके पनाह ले रहे हैं, उनको बचाने वाले भी कुछ जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं, कुछ स्नेक्स हैं, अपने ही आस्तीन के सांप है, वो उनको पनाह दे रहे हैं। वरना सर ऐसे सर्वाइव करना मुश्किल होता है और पॉसिबल ही नहीं है कि उनके संग्रह दिए बिना वो एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। वो उनको पनाह देना अगर बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लोग वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट बात ऐसी है ना कि हम सोचते हैं हमारे लिए नहीं है, ये हमारे अगेंस्ट नहीं है। बट देखिए, अगर आप सांप पालेंगे, आपको वो आज नहीं तो कल काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसकी नस्ल में ही जहर है, वो देगा। अगर आपको लगता है कि हमारा अपना, किसी को मारने वाला किसी का अपना नहीं हो सकता, किसी गरीब को मारने वाला, कोई गोलगप्पे वाली रेडी लगाने वाला इंसान उसको मार दिया, भाई वो गरीब इंसान है, उसका कोई मजहब, उसका धर्म है ही नहीं है, आप उसको मार रहे हो। एक औरत को, नवरात्रि चल रहे हैं और यहाँ भारत की जम्मू कश्मीर की पावन धरती पे हम औरतों को अगर 22 पाँव भी टच हो जाए ना तो हम उसके पाँव छूते हैं, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आप उसी औरत को उसका ID कार्ड देकर उसको मार रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन।
देखिए रिलीजन पे कोई बात नहीं है, बट अगर आप किसी को टारगेट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन कर रहे हो तो हाँ फिर रिलीजन पे ही बात है। मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड इन कश्मीर। सर देखिए जो भी सच बोलेगा, जो आईना दिखाएगा वो दिखाएगा एक बदसूरत सी शक्ल, क्योंकि आईने में वही दिखता है जो सच होता है। वो शख्सियत, वो शक्ल जब दिखाई जा रही है, वो आईना दिखाया जा रहा है, तो उनको तो चिढ़ाएगी कि जब वो बोल रहे हैं कि भैया हमको तो पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। ये आज का कश्मीर है, ये आगे बढ़ना चाहता है, ये पढ़ना चाहता है, ये देश की तरक्की में हाथ बटाना चाहता है, रोड़ा नहीं बनना चाहता। 90 में जब आपकी बात होती होगी पेरेंट्स से, 90 में जो हालात थे उसके बारे में सुना था, क्या हुआ? सर वो एक बहुत पैनिक कंडीशन थी जब 90s का जो दौर था। हालांकि हमारा तो 20s के बाद जन्म हुआ, लेकिन 90s का जो दौर था ना, अगर आप किसी कश्मीरी पंडित से पूछोगे ना, मैं तो अभी गूज़बम्प्स पे साथ हूँ, वो रोने, उसकी आंखों से अपने आप रोने आंसू आएंगे। वो आंसू डर के आंसू नहीं थे, वो आंसू थे अपनों के से ही गिला खाने का, अपने ही दोस्तों को अपना घर जलाते देखने का, अपने ही जो आपके दोस्त हैं जिनसे आज तक घुलते मिलते थे, वही आपकी जान के दुश्मन जब बन जाते हैं, तो वो जो गद्दारी जो कह लो, या वो आपके साथ जो गलत चीज़ हुई, वो आप टॉलरेट नहीं कर सकते। वो चीज़ एक दयनीय थी, वो दयनीय परिस्थिति जब औरतों के साथ गलत रेप कर दिया गया, या महिलाओं को, इवन की प्रेग्नेंट औरतों को भी छोड़ा नहीं गया, उनके साथ भी बलात्कार किए गए, छोटे बच्चों को टारगेट किया गया और किसी को नहीं बख्शा गया। वही सेम करने की कोशिश की जा रही है। आज एक गरीब गोलगप्पे वाले को मार दिया गया। ये तिरंगा जो यहाँ लहरा रहा है, इस तिरंगे की खातिर जो कश्मीर में जो लोग जा रहे हैं, जो कश्मीर में रहते हैं, लगता है ये तिरंगा इस वक्त परेशान कर रहा है उन लोगों को जो सरहद के पार है। सर आप एक चीज मानोगे, किसी की माँ कभी किसी को परेशान नहीं कर सकती। माँ जो है ना, मावा ठंडिया छावा, डोगरी में कहते हैं मावा ठंडिया छावा। माँ एक ठंडी छाव है और भारत माता है। क्यों भाई, भारत माता की जय। देखिए सर, ये जोश है, ये मेरे स्टेट का जो नौजवान है ना, जम्मू कश्मीर का, ये वो जोश रखता है, ये डरता नहीं है। और अपनी माँ भारत माता कभी मुसीबत नहीं बन सकती सर। वो हमें हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हमें अपनी इंडियन आर्मी में पूरा भरोसा है, वो हमें इस परिस्थिति से जरूर बाहर निकलेगी। बहुत शॉर्ट टर्म में जिन्होंने मारा, उनके आज तो बेचारे कहीं रोड पे गिरे मिल गए। देखिए जो भी करेगा वो भरेगा। ये जो कर रहे हैं सोच के कर रहे हैं कि हम तो भाई हमें कुछ होगा नहीं, लेकिन याद रखना इंडियन आर्मी है वहां पे, और तुम्हें पता है फिर क्या होने वाला है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। So these are the voices. We'll speak to some other people also, but I would like to show you the visuals over here. You can see, crush the terrorism, crush the Pakistan, crush the terrorism, crush the Pakistan. These are the slogans what they are raising, and why they are raising, because they know that Kashmir is facing the bloodshed. Kashmir is facing this pace for last 3 decades only because of Pakistan, and Pakistan don't want to understand this truth that they will not be succeeded in any of its nefarious plan. Let's speak to some other people over here that what they have to say. Ma'am, what do you say? Like, what need to be done, and why it is happening? Why people are panic in Kashmir? Why they are moving? And what need to be done to stop this migration once again? जिस प्रकार आप सभी के ध्यान में है कि पिछले कई दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, आतंकवाद का आतंक जो बढ़ रहा है, ये बहुत ही दुखनीय है। और युवा आज एक एकत्रित है तो केवल एक ही कारण से कि युवा जो भारत है वो समूह तोड़ के जवाब देना जानता है। आपको इतना मतलब पता होना चाहिए कि 1990 का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है, और 21वीं सदी का जो भारत है वो मुंह तोड़ के जवाब देना अच्छी तरह से जानता है। और जिस तरीके से कश्मीर में अब ये सब हो रहा है, लगता है दर्द होता है। वो वापस विजुअल, वो तस्वीरें 90 के दशक की वापस आ रही हैं, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, डर रहे हैं। बिल्कुल, जो ये घटना हो रही है इससे पूरा जो भारत है वो प्रभावित है। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत प्रभावित और बहुत डरे हुए हैं। और पिछले दिनों तो ये सुनने में भी आया था कुछ लोगों ने यहाँ मूव करके यहाँ लोग जम्मू में बस गए थे। तो ये बहुत ही दुखनीय घटना है और इसका हम कड़े शब्दों में जो है निंदा करते हैं। Let's speak to some other people over here that what they have to say and why it is required, that why they want to crush Pakistan. We'll speak to you first. Why these slogans is being raised that Pakistan need to be crushed, and how important it is? See, we have to understand that what the Pakistan is doing. Pakistan is expanding terrorism across the world, and India, we can say that in Kashmir, in Jammu and Kashmir, who is responsible for the terrorism? The political scenario, the peoples who had, they had did here, the Pakistan who is spreading the terrorism across Jammu and Kashmir. So there is a need to those people who are, who are doing the work on the behalf of Pakistan. So there is a need to how the government can crush them. So it is the need of the art that the idea of terrorism, which is in Jammu and Kashmir, which is all over the India. So there is need, the government should work on the how can they can crush the idea of terrorism across Jammu and Kashmir, across India. So the government should work on it.
आइडिया ऑफ टेररिज्म ये कहाँ से वर्ड आया, कहाँ से, ये कौन लोग हैं जो पनाह दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो लोग हैं जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, चाहे वो भारत के अंदर भी ऐसे लोग हो सकते हैं, ग्लोबली भी अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के लोग हो सकते हैं जो टेररिज्म को, जैसे हम देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर जो एक लंबे अंतराल से जो है टेररिज्म से अफेक्टेड रहा है। कश्मीर के अंदर लगातार वहाँ माइनॉरिटीज़ को मारने का काम किया जा रहा है। 1990 के अंदर हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया। तो जो इसके पीछे लोग हैं उनकी एक मानसिकता है कि हम कैसे जम्मू कश्मीर को या भारत को जो है हम कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसको क्रश कर सकते हैं। तो एक जो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर उसको एक्सपैंड करके, तो इस समय ज़रूरत है सरकार को, जो भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो टेररिज्म के लिए काम करें, जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और उनको, चाहे अभी पिछले दिनों जो एक डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर हुआ, वहाँ 400 लोगों को डिटेन भी किया गया। ज़रूरत है अगर 400 की जगह 4000 लोग भी हैं जो इस प्रकार का काम, वहाँ कृत्य करने का काम कर रहे हैं, उनको आप डिटेन करिए। और कैसे हम जम्मू कश्मीर से आइडिया ऑफ टेररिज्म को ही पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर इस समय जो टेररिज्म है वो अपनी लास्ट स्टेज के अंदर खड़ा है। तो इस समय सरकार को उस ओर काम करने की ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह आतंकमुक्त जो हो सकता है उस पर सरकार को करना आपके साथ कई लोग जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो कश्मीर से भी होते होंगे। एक मानसिकता ये भी देश में कई बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान जब बयान देता है, कई ऐसे नेता बोल जाते हैं कि युवा जो है वो जो है कश्मीर का कुछ अलग सोच रखता है। वो क्या सोच रखता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर का युवा अलग सोच नहीं रखता है। कश्मीर का युवा भी भारत के साथ चलना चाह रहा है, वो आज चलता भी है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो भी ऐसा है, वो कश्मीर के अंदर कुछ और राव लागते हैं। जब वो भनाल का क्रॉस करते तो उनके कुछ और, उनकी बयानबाजियाँ शुरू हो जाती है। तो उन लोगों को भी समझना पड़ेगा जो वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ पर है। कश्मीर का युवा आज भारत के साथ चल रहा है, ऐसा नहीं है। कश्मीर का युवा भी भारत के साथ चलता है और इस समय कश्मीर का युवा भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर के युवा भी आज आप देख सकते हो कि देश के, चाहे वो भारतीय सेना हो, साइंटिस्ट हों, IAS के अंदर हों, तो कश्मीर के युवा लगभग हर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। कश्मीर का युवा भारत के साथ खड़ा है, परंतु कुछ ऐसे मिसगाइडेड यूथ हैं जिनको वहीं के लोग, वहीं का पॉलिटिकल सिस्टम उनको मिसगाइड करने का काम कर रहा है। कुछ पाकिस्तान के कुछ बहकावे में आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है उन लोगों को कैसे वो सही रास्ते पर ला सकते हैं, इसलिए सरकार को उस पर काम करना चाहिए। Let's move ahead and we'll speak to some other people also that what they have to say, because we know that how tough time we people have faced in Jammu and Kashmir. Let's speak to one more student over here. क्या लगता है किस तरीके से तस्वीरें जो देख रहे हैं कश्मीर से वापस लोगों का निकलना, वहाँ से दर्द देता होगा? ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि हम मतलब पार्शियलिटी की जा रही है, पहले कहा गया कि नहीं यूजुअली शूटिंग हुई है, बट बाद में हमें पता चला कि नहीं, सिलेक्टिव शूटिंग हुई थी। वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया, वहाँ सरदारों को मारा गया, उनकी आईडीज पहले चेक की गई, उसके बाद शूटिंग की गई। तो ये कहना कि नहीं वो आतंकवादी किसी को देखते नहीं है या वो ये नहीं देखते कि क्या रिलीजन है, क्या है, तो ये सब झूठ है। ये सिर्फ उनको कवर करने के लिए। और जब हम वो पिक्चर्स देखते हैं, वो मासूम जिन्होंने कुछ किया नहीं था, जिनकी फैमिलीज घर पे हैं, जिनके बच्चे घर पे हैं, वो उन लोगों को देखते हैं और वो कितना गंदा महसूस होता है। वो रोंगटे खड़े करने वाली मतलब सीन्स होते हैं, हम नहीं देख सकते, वो चीज़ें ऐसी होती हैं। होना क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि ये होना चाहिए कि जो ये पॉलिटिकल गेम है उसको छोड़कर हमें ये देखना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ बार बार मतलब बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, एक्शन से सब कुछ होने वाला है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी कुछ काम खराब किए? सर मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं बोल सकती कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया, वो बोलना गलत होगा, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं उस बारे में, मैं उस बारे में बात करूँ तो वो गलत है। बट हाँ, कुछ चीज़ें अंदर से भी होती हैं, बाहर से भी सपोर्ट होता है, अंदर से भी सपोर्ट होता है, बट मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। होना क्या चाहिए लगता है पाकिस्तान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने जो बैनर पकड़े हैं, क्रश पाकिस्तान, क्या मतलब है, चाहते क्या हैं आप लोग? सबको पता है इंडिया एक ही चीज़ चाहता है, वो है शांति। लेकिन अगर वो अशांति फैलाएंगे तो हम भी फैलाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। गांधी जी ने ये सिखाया है कि थप्पड़ पड़े तो चुप रहो, लेकिन दूसरे थप्पड़ पड़ने पे भी चुप रहो ये नहीं सिखाया है। तो अगर वो शांति रखेंगे, हमें भी शांति चाहिए। अगर वो हमें बोलेंगे तो हम भी आएंगे लड़ने के लिए। हम बस इतना चाहते हैं कि शांति और अमन रहे, दैट्स इट। आप लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए, देख रहा था कि काफी दर्द था। ये दर्द जो है, इसका अंत क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? मैं तो समझूंगी कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि जो आतंकवादी हैं उन्हें पकड़ा जाए और सबके सामने हम लोग उन्हें मारें।
क्योंकि जस्टिस हमने देख लिया कितना होता है कितना नहीं, उनको यहीं पे लटकाना चाहिए। जैसे उन्होंने बेदर्दी से उनको मारा, उनको जेल नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए। Action is required. Action is required. That is what voices, young voices from Jammu and Kashmir, they want here. Let's speak to one more Kashmiri Pandit guy is with me. तकलीफ हुई जब सुना एक बार फिर कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, आपके लोगों को निकलना पड़ रहा है, क्या सुन रहे थे, क्या हो रहा है? First of all, Jai Hind to all. Sir, target killing either in Kashmir or any other place, it is very heartening and it is very disgraceful to see the target killing of Kashmiri Hindus in Kashmir, which we have seen recently an incident. Sir, these sort of incidents, these propel us against the law. So what is required for the government is they not only protect Hindus. I'm not against any religion. I'm not for any religion. Neither am I standing by any religion nor I'm against any religion. But the main thing is humanity. Sir, the biggest book of our Indian culture is Arth Shastra. Sir, what Arth Shastra says is we should never ever compromise with security, internal security of our country. Sir, other outside elements, if they enter into our territory and they, despite of having so much of security around us, even they are successful in killing our own men, either Hindu or a Muslim, but they are targeting one specific particular community. So this, I think this is not only failure of government, but this is also failure of we as Indian nationals, because we also owe many things to our country. It's not only government, but we should also, I personally will urge my people, I personally will urge my youth, my brother and sisters, to not only depend on few men like army men. If needed, at times we can also come forward and save. If we are seeing injustice happening in front of our eyes, so we can also stand up, at least react. If not, we can prevent. We can at least deter, so that the authorities can come and take over. What was your first reaction when you listened that news that one more Kashmiri Pandit is targeted and who was sitting in his shop and serving to the people of Kashmir? Sir, targeting and target killing, to my opinion, it is not acceptable. Whether we are targeting any community, I'm not talking about any religion, targeting any specific community is very heartening and without any reason or for any reason also. We should not target and we should be provided internal security. And what need to be done now? Do you believe that now time has come when government should and security forces should take action even across, like airstrike was done, like this surgical strike was done? Well, sir, the government of India, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, he has already done many things. If we all are aware of Army Act, which is applicable in sensitive areas, it is applicable in Kashmir as well. So, apart from social security forces, it is our responsibility also. We should also put the feet on our pedal, and we should also owe our responsibility towards our land, and we should definitely not compromise any sort of target killing, because we as an Indian, we are nationalists. Being Kashmiri Pandit, do you believe there are people, those who are black ships and hiding in the civilians and targeting, helping the terrorists to carry out targeting? Definitely. This is a question of sure, severe, means this is sure, 100% sure that there are people. Because if we take example from our history, we had great kings, greatest of great kings. Even Afghans had said that our Indian kings were great. But due to presence of some unsocial elements who just for the sake of few money, just a little bit of money, they just sell out their humanity. So there are present, and until and unless government is very strict, and government should lay heavily upon such culprits. Let's speak to one more person is with me. क्या लगता है अब ये जो हो रहा है इसको रोकने का तरीका एक ही है क्या? देखिए
दामोदर नरेंद्र मोदी जी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक पिछले कुछ दिनों में की थी, ऐसे ही एक सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लगता है कश्मीर में दोबारा चाहिए। इंटरनली वहाँ के लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि वो उन्हीं के लोगों को आपस में मार रहे हैं। सिर्फ एक कश्मीरी पंडित को नहीं मार रहे हैं, सिर्फ एक इंडियन को नहीं मार रहे हैं, वो उनके अपने लोगों को भी मार रहे हैं। कश्मीर के लोगों को खुद ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरह जो टेररिस्ट है वो किसी इस्लामिक चीज़ों पर नहीं चल रहा है, वो इस्लाम की चीज़ों को नहीं अपना रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये हम जिहाद कर रहे हैं, लेकिन उनको सही किसी मौलवी ने नहीं समझाया कि जिहाद क्या है, व्हाट इज़ द जिहाद। जिहाद का मतलब है जो इंसानियत के खिलाफ जाए आप उसका सर्वनाश करो, लेकिन ये उन्हीं लोगों का सर्वनाश कर रहे हैं कि जो भाई नॉन मुस्लिम है। ये चीज़ जो है ये उन लोगों को समझानी पड़ेगी। जो कश्मीर के अंदर हर फ्राइडे को आप देखते हो कि वहाँ पे पत्थरबाज होता है, वहाँ पे पत्थरबाज शुरू हो जाते हैं हर फ्राइडे को। क्यों सिर्फ फ्राइडे को ही क्यों? अब रुक गए? हाँ जी, अब रुके हुए हैं काफी देर। किस चीज़ को लेकर? पत्थरबाजी। हाँ, अब रुक गए हैं। 370 के बाद अब काफ़ी सुधार आ चुका है सर, क्योंकि वहाँ की आर्मी ने आर्मी को जो है दामोदर नरेंद्र मोदी जी ने फुल जो है वहाँ पे उनको सपोर्ट किया है कि आप किसी भी तरह वहाँ पे जाके आर्मी वाले अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। Let's speak to some other voices over here, and we have one voice from Kashmir also. Let's speak to her, what she thinks about the present scenario, what need to be done. क्या लगता है जो हालात बन रहे हैं, कौन लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं कश्मीर में एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम? हिंदू और मुस्लिम की यही बात है जिनकी मानसिकता ऐसी है, जो ये चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम हमारा जो भारत है वो सेकुलर ना रहे, ताकि भारत जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। वही लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन आज का जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो ऐसा नहीं है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ पड़ेगा। जो हिंदू और मुसलमान है वो आपस में लड़ पड़ेंगे, उनकी सोच ऐसी आज बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से जो हुआ थोड़े दिन पहले कश्मीर में, टारगेट किलिंग हुई मिनॉरिटीज़ में, दुख हो रहा था तब। अब जिनके घर के मेंबर्स मरे उनसे ज़्यादा तो दुख किसी को नहीं हो सकता है, बट फिर भी हमें ये इस बात का दुख है कि आखिर बेकसूरों को क्यों मारा जा रहा है, उनकी गलती क्या है जो उनको मारा जा रहा है। जिस तरीके से कश्मीर में टारगेट किलिंग फिर से शुरू हुई, उस वक्त उस तरह से लगता है कि युवा कश्मीर का है, उसे जागरूक होना पड़ेगा कि एक बार फिर लड़ाने की राजनीति जो है वो सरहद पार से होने वाली है। जी हाँ, जिस प्रकार से 370 टूटने के बाद जो है पत्थरबाजी के जो मामले थे वो कम आ रहे थे, आतंकवाद के मामले कम आ रहे थे, लेकिन एक ही दम जो है सिलेक्टिव किलिंग होने के कारण जो है जैसा कि हम देख रहे हैं सिलेक्टिव किलिंग हो रही है कश्मीर में। यूथ जो है उसको एक मुट्ठी में बंद कर जो है ये आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर के भी युवा को जो है एक मुट्ठी मतलब बनकर युवा तरुणाई को जो है इन सब का सामना करना पड़ेगा। और एक जम्मू कश्मीर को जो एक भारत का ताज कहा जाता है, एक कश्मीर को जो जन्नत कहा जाता है, उसको जानूम बनने से बचाएं और जन्नत को जन्नत ही रहने दें। जन्नत नीड टू बी जन्नत। लेट्स स्पीक टू वन मोर पर्सन विद मी। जिस तरीके से कश्मीर में हालात वापस दोहराने की कोशिश हो रही है 90 के दशक को, क्या लगता है चाहिए क्या है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि 90 के दशक के हालात अब भारत में नहीं हो सकते। वो समय वो दौर दूसरा था, अब ये भारत नया भारत है, ये भारत बदलता हुआ भारत है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो थोड़ा सा परेशान हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा साम्राज्य कश्मीर से ख़त्म हो रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दोबारा हम 90 के दशक को लेकर आए, लेकिन ये अब इनके जो मंसूबे हैं ये सफल होने वाले नहीं हैं। ये उभरता भारत है, आत्मनिर्भर भारत है और नया भारत है, इसलिए अब ये कश्मीर में नहीं चलेगा। ये दहशत फैलाकर लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं, ये कश्मीर की जनता है, इनको ज़्यादा टिकने नहीं देगी। लगता नहीं है कि अब कोशिश जो है एक बड़ी कार्रवाई की फिर होनी चाहिए, सरहद के पार कार्रवाई होगी तभी ये शांति जो है हो सकती है? देखिए, ये समय की मांग हो सकती है। निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, पाकिस्तान को लगता है कि नहीं हम लगातार भारत में ऐसे ही मंसूबे अपने गढ़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना पाकिस्तान ने देखा ही है। जिस प्रकार से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, एक निश्चित रूप से LOC के पार जाकर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर भी सकते हैं। ऐसा भी अगर संभावना बनी तो मुझे लगता है भारत को करना ही चाहिए। तिरंगे की खातिर देश का युवा क्या कर सकता है? तिरंगे की खातिर अभी आपने इतने सारे युवाओं से व्यूज़ लिए हैं, ये इससे आपको पता ही चल गया होगा कि तिरंगे की खातिर देश का नौजवान करना क्या चाहता है।
निश्चित रूप से तिरंगे के लिए भारत का नौजवान हर प्रकार से समर्पण करने के लिए तैयार है, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। जिस भी प्रकार का समर्पण है वो देश का युवा करने के लिए तैयार है। और भारत के साथ भारत का युवा अपितु साथ साथ कश्मीर घाटी का युवा भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वो देश, धर्म और जाति इसके आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं कर रहा है। वो केवल देश के साथ खड़ा है। उनके लिए कंट्री फर्स्ट है और देश प्रथम है। इस प्रकार का भाव लेकर वो आगे काम करेगा। We have with us one more person who is carrying this tricolor on his shoulder since last 2-3 years, and let's speak to him also. इस तिरंगे की खातिर, देश की खातिर क्या करने का जज्बा जम्मू कश्मीर का युवा रखता है? सर, आज आप सबने देख लिया होगा कि यहाँ पे जो जम्मू का यूथ है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है तिरंगे लेकर, और इसका यही संदेश है कि ये 1990 वाला समय नहीं है। आज उस समय भी ऐसा नहीं है कि उस समय भी जम्मू कश्मीर के यूथ ने बहुत विरोध किया था जो 1990 में हालात बने थे, परंतु आज जो है आज फिर ये जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो एक उनको आतंकवादियों को और जो पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर का युवा अब जो है वो आतंकवादियों को नहीं बख्शने वाला है। अब पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, उनको नहीं बख्शने वाला है। उनको जो है वो अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ का जो यूथ है वो पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला। सेना जो है शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सेना के लिए लगता है गंभीर चीज़ें, चुनौतियां जो है वो कश्मीर के अंदर बैठे हुए लोग हैं। सर, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि अपने घर में जब कोई घुस रहा है तो कोई ना कोई अपने में से उनको अपना दे रहा है। देखो, कोई बाहर से आएगा, हम उनको अपने घर में नहीं रहने देंगे तो उनका रहना मुश्किल है। अपने में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस धर्म जाति के नाम पर जो है वो भड़के हुए हैं। उनको जो है वो अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो पाकिस्तान का है ये चंद दिनों के लिए अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, परंतु अब वो समय नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर का जोश जाग चुका है। जम्मू कश्मीर का जोश जो है वो अब उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। जम्मू कश्मीर, हमारी जो भारतीय सेना है उसमें बहुत शक्तिशाली सेना दुनिया में, और जो पाकिस्तान को हमने ये करके भी दिखाया था, घर में घुसकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का जो चाहता है कि अपनी सेंटर सरकार से कि एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। जब कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई तब जम्मू के युवा ने या देश भर के युवा ने संदेश क्या दिया था उन लोगों को कि आप साथ हैं सब? देखिए, जब से ये टारगेट किलिंग जो हो रही है वो कई सालों से हो रही है, और अभी उसने तीव्र मतलब कि बुखला गए हैं ये आतंकवादी। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। और कोई बिजनेस करने वाला, कोई दिहाड़ीदार व्यक्ति है, गोलगप्पे लगाने वाला, बताइए आप उनको क्यों मारेंगे? क्या उसने किसी आतंकवादी को ज़्यादा गोलगप्पे खिला दिए या उससे कम खिला दिए? ये आवाज़ जम्मू कश्मीर के उन युवाओं की हैं जो साफ संदेश पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को देना चाहते हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलने के प्रयास कर रहे हैं कि सुधर जाइए। जब जम्मू कश्मीर का युवा जाग गया और चल पड़ा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।